Well, a very, very good evening to all of you. We welcome you to the September session of Inspire Book Review Club. Now, as I see that lots of you are new, you have come through some reference, somebody had put it in your group and you felt it interesting and you came. So we request you, if you wish to keep, connecting with books like this, you can join the club. The best thing is there are no formalities, there is no entrance charge or registration charge or anything else. It's an absolutely free of charge club. Its only motto is to spread the wisdom through books. So even if you are fond of reading, you can come forward, you can share which book you're reading, you wish to review, and we can give you a slot for reviewing book. So with that note, let us start today's session. Are we all up for it? Yes? Very nice. Well, today's session is very special, very close to my heart. Not just because I'm reviewing a book, but because both the books are going to reach till your roots. One book is going to question about your history, is going to share with you how you have been taught a history and what it was actually, an unbiased view towards 2000 plus years of your history. And another book that is going to tell you that the food that you're eating, whether it is right or wrong. So we are happy to share with you, and I hope that at the end of this session, you will have a lot that you're taking back to put in your lifestyle and in your knowledge bank, right? So with that note, I take the privilege of introducing the first reviewer of today, Dr. Arvindji Dhopte. So proud to share with you that he's my father-in-law. And he is a double PhD scientist, a botanical scientist who did one PhD from India and one from US. And he is author of 12 books. 3 of them have been written on his subject, the academic books, which are referred vastly across the globe. And rest of them were books on his journeys, on his other interests, and one of them happens to be his autobiography. So very proud to share with you that he's going to review this book on Hindu Itihas, and we are all very, very eager to hear from you, Abba. So all yours. हिंदू इतिहास एक किताब है, हारों की दास्तां. माझा फोटो नाही काही ती. बाबा वीडियो ऑन कर लीजिए. नोट करावं लागेल. आता येईल. माझा कुठे आहे? Yes. तो स्लाइड थोडंसं तुम्हाला लाऊडली बोलावं लागेल. He's quite audible. Audible? Yes. Am I audible to all? Yes, perfect. Okay, thank you. तो मैं हिंदी और कभी कभी अंग्रेजी में बात करूँगा एक ऐसी किताब पे जो इसका नाम है हिंदू इतिहास हारों की दास्तां बाय डॉक्टर S.K. शर्मा. ही इज ऑल्सो PhD फ्रॉम अमेरिका. और अब हम चलते हैं हमारे इतिहास की तरफ, जहाँ बहुत सारे चेंजेस हुए और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम हमेशा 1500 से 2000 साल तक गुलाम क्यों रहे. तो इसका ब्यौरा लेते हैं. अरे आनंद,
हे स्लाइड बदलून नाही राहिली. हाँ, इसका ब्यौरा लेते हैं. तो हम हारते क्यों रहे? तो ये किताब में इतने सारे कंटेंट्स है जो मैं पढ़ूंगा. हम सदियों तक क्यों हारते रहे? नंबर 1, देयर आर वेरियस चैप्टर्स. धर्म ने बचाया पिटवाया. क्या हिंदू बहादुरी से लड़े? हिंदू भलमान से पीटे या जहालत से? क्या हिंदू लड़ाकू नहीं है? चीन हिंदू सेनाओं का मनोबल और उनका धर्म. क्या हिंदुओं की तबाही का कारण धर्म नहीं? प्राचीन भारतीय सेनाओं का अभिशाप हाथी. स्वतंत्रता के बाद इतिहास की पुनरावृत्ति. तो इतने सारे पॉइंट है. मैं सिर्फ बात करूंगा एक 600 साल पूर्व, ईसा पूर्व क्या हो रहा था और हमारे हिंदुस्तान में कितने इन्वेडर्स आए. तो बहुत दूर दूर से इन्वेडर्स आए, आक्रमण हुआ. 1000 किलोमीटर से लंबे वो लोग आए. अब ये नक्शा आप देख रहे हैं, जो भारत का नक्शा है 1526 का. इसमें काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान और बाद में हमारा ये हिंदुस्तान या भारत, तो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है. और एक 600 327 साल ईसा पूर्व जो सिकंदर ने पहला हमला किया, यानी उसको करीब 2327 साल हो गए. और सिकंदर जो था, अलेक्जेंडर, जो ग्रीक से आया था, तो ये देश पे अनेक आक्रमण हुए. यानी अफगानिस्तान, ग्रीक, तुर्की और बाद में चाइना की तरफ से. तो हम एक एक को देखते हैं. ईसा पूर्व 327 साल पहले की, जब राजा पुरु था और उनका राज्य था, शशि गुप्त का राज्य था, शूद्रक का राज्य था और चाणक्य का राज्य था. तो हम उस समय का रिलीजन का माहौल ऐसा था कि उस समय 2500 साल पहले महावीर हो चुके, बाद में गौतम बुद्ध हो चुके. उस समय उन जमाने का जमाना था और उस काल में बुद्धिज्म और जैनिज्म सबसे ज़्यादा था. तो ये काल की बातें जो हम करते हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने बहुत बड़ा किंगडम बनाया. और अशोक की डेथ तक कोई आक्रमण नहीं रहा. तो सम्राट अशोक के ज़माने में बहुत सारा भारत अच्छा रहा, बढ़ता रहा, प्रोग्रेसिव होता रहा. और जब बौद्धिज्म आया, तब आचार्य चाणक्य और उनके गुरुओं ने दे मेड यूनिटी की, बट कैप्चर्ड बाय ग्रीक. तो ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि हम हारे हारे कितने. सिकंदर आया सिर्फ 18 घुड़सवारों के साथ. यानी हमारे कुछ लोग कहते कि 200 थे, लेकिन चलो हम 200 ही पकड़ ले. तो 200 आदमी आके सिकंदर ने बंगाल और बिहार पर राज किया और काबिज कर लिया. तो इतनी बड़ी बात कैसे हुई कि इतने छोटे से आदमी ने एक छोटे कम तादाद में आदमी आक्रमण हुआ, फिर भी हम हार गए. और इसका कारण जाता है अपने जाति व्यवस्था में. तो चाणक्य मेड दिस यूनिटी बट कैप्चर्ड बाय गीक एंड इट वाज ऑल कैप्चर्ड. बंगाल एंड बिहार वाज कैप्चर्ड बाय सिकंदर. तो इतने छोटे लोग आकर भी हम प्रतिरोध क्यों नहीं कर सके? वाई वी हैव नॉट रेजिस्टेड? तो इसमें बहुत सारे कारण है, मैं आपको बताऊंगा.
बाद में मेन कारण था बेसिकली ऑफ बुद्धा एंड जैन रिलीजन। कहते अहिंसा परमो धर्म और बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी सम्राट के अशोका के बाद में हम ये देखते हैं कि लोगों ने लोगों में थोड़ी नपुंसकता बढ़ गई, इम्पोर्टेंस। क्यों? अहिंसा परमो धर्म। तो ये टीचिंग अच्छी थी या गलत, ये चर्चा का विषय है, इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसके आगे आगे सिकंदर के बाद में डेमिट्रियस, ये भी ग्रीस से आया, डेमिट्रियस, बट ही वॉज इन्वाइटेड बाय शालीशुक। हमारे भारत में बहुत सारे जो राजाओं थे या लोग थे, वो उन्होंने आक्रामकों को, इन्वेडर्स को बुलाया कि भाई आप लड़ो और ये काबिज कर लो। तो डेमेट्रियस ग्रीक से आता है और हम फिर भी हार जाते हैं। एंड ही वॉज वेलकम बाय शालीशुक एंड शालीशुक इन्वाइटेड हिम टू कम एंड अटैक। बाद में उसने कितना काबूज किया? मथुरा, पाटलिपुत्र, चित्तौड़, मगध, इतनी सारी एरिया उन्होंने कैप्चर कर ली। तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ी तादाद में इतने सैनिक आकर भी हम पर राज की। क्यों हुआ बाद में मैं बताऊंगा। तो थोड़ी हार जाने के बाद रिटर्न एंड अगेन केम बैक एंड कैप्चर्ड पेशावर, तक्षशिला एंड सियालकोट। तो ये जो ग्रीक इन्वेडर था, इसने सियालकोट, तक्षशिला, पेशावर ये काबीज किए। यानी पहले जो पटना, मथुरा, चित्तौड़, मगध भी काबीज कर लिया था उसने। बाद में उसने अपना मुस्लिम किंगडम बनाया एंड मौर्य वाज डिफीटेड। उस जमाने में जब हम देखते हैं तब शस्त्र और आयुध क्या थी? एक तो धनुष था, भाला था, गदा था और तलवारें थी। तो ये दिखाने के लिए स्लाइड है कि हम लोग कैसे लड़े, भाले से, घोड़ों के साथ में, घुड़सवार होकर। बाद में बृहदत्त, यानी अशोक सम्राट के बाद में जो उनका नाती था बृहदत्त, उसको ही एस्टैब्लिश ए ब्राह्मण किंगडम। तो हम लोगों में एक ऐसी रेस पैदा हो गई कि बुद्ध श्रेष्ठ, जैन श्रेष्ठ, या ब्राह्मण श्रेष्ठ, या अपना हिंदू श्रेष्ठ। इसीलिए मनुस्मृति was written in this period and they have established Brahmin state in that period. मनुस्मृति was written in this period. रिजल्ट क्या हुआ? बुद्धों की डिफीट हुई। एज ए रिजल्ट पुष्यमित्रा इन्वाइटेड शुंगा टू अटैक ब्राह्मण किंगडम शुंगमित्रा। एंड देखिए, शुंगमित्रा was ruling the country that time, and after Ashoka almost 3/4 of the India was under Samrata. But due to some problems and the invitation of the Chinese, and Vasumitra attacked and defeated Greek beyond Sindhu River that time. But later on, Shak, Kushan and Hun, they came from China. And Jain invited Shuk. From China who were thrown up people who came constantly after Hun. देखिए, ये कौन इन्वेडर्स थे? जो भगाए हुए लोग थे, जिनको वहाँ के लोगों ने भगाया था। और पहली बात ये कि उनको खाने के लिए मोहताज होना पड़ता था, खाना नहीं मिलता था। और ऐसे ऐसे लोग वहाँ से उठाए, सैनिक बनाए, और ये लोगों ने हम पर आक्रमण किया। उसी जमाने में चाइना पे भी आक्रमण होते थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी वाल बना ली। हम वाल क्यों नहीं बनाए? हिंदुओं ने वाल क्यों नहीं बनाया? जहाँ से चाइना आता है,
जहाँ से अफगानिस्तान के लोग आते हैं, तो वहाँ चौड़ी वॉल क्यों नहीं बनाई गई? तो आफ्टर चाइना हम कुछ भी सीख नहीं सके। ये सब लोग जो आते थे मंगोलिया से आते थे और साइबेरिया से आते थे और इधर अफगानिस्तान से आते थे, ग्रीक से आते थे। तो उत्तरी पूर्व तरफ से और पश्चिम की तरफ से दोनों से आक्रमण हुआ। और तो पूर्व की तरफ से आक्रमण शक, कुषाण, हुन। और ये इनको किसने इनवाइट किया था? शुक ने इनवाइट किया था। सी द फन, व्हेन देयर वाज अ ब्राह्मण किंगडम आफ्टर अशोक, सम्राट अशोका, तो उनकी ग्रीडीनेस थी, स्वार्थ था कि हम 3/4 इंडिया पे ही क्यों राज करें, हम ज्यादा कर सकते हैं। उस समय ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ ब्राह्मण। इन दिस पीरियड देयर वाज अ टसल बिटवीन हिंदू, ब्राह्मण, जैन। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जैन लोग 2500 साल पहले आए, बौद्ध 2550 साल पहले आए, बुद्ध आए 2500 साल पहले। तो बाद में आगे चलते हैं। फ्रॉम चाइना हु वर थ्रोन अप पीपल हु केम कॉन्स्टेंटली आफ्टर हुन, यानी हमेशा आते रहे, आक्रमण करते रहे, मारते रहे, जलाते रहे, पीटते रहे, और हम पीटते रहे। 455 इसी से चलते हम, यानी आफ्टर क्राइस्ट 450 साल कैप्चर्ड वेस्ट इंडिया पूरा। वो लोगों ने वेस्ट इंडिया को पूरा कैप्चर कर लिया। गुप्ता किंगडम डिफीटेड, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो भी पहले ही चला गया, बाद में गुप्ता किंगडम आया, इट वाज डिफीटेड बाय देम। देन जाट, गुजर एंड अहीर केम फ्रॉम अरब। ये ऐसा कहना है कि ये सब जो लोग हैं, जाट अभी भी है हमारे यहाँ, गुजर और अहीर, ये सब अरब से आए थे। अब ये किताब में लिखा है, कितना सच है मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ऐसे भी कई लोग अरब से आए, जैसे बताया गया है आगे कि राजपूत वेर ऑल्सो डिफीटेड, एंड इट इज सेड इन दिस बुक दैट दे वेर ऑल्सो द इन्वेडर्स ऑन टाइम। यानी हम अब बात करते हैं 455 AC की। गुप्ता किंगडम डिफीटेड, जाट, गुजर एंड अहीर केम फ्रॉम अरब। मोहम्मद बिन कासिम, he was from Afghanistan, and 644 वे AC में उसने हमला कर दिया। उस समय किंग दाहिर सिंध में था। सिंध सिंध पंजाब, अब जो पंजाब पाकिस्तान में है। तो किंग दाहिर वाज किंग, एंड किंग दाहिर ऑफ सिंध वाज अटैक्ड। कितने लोग लेके आए? 6000 वॉरियर, एंड बुद्धा पीपल हेल्प हिम इन 712 AC। यही दी फन, यानी बात ये हुई कि वो 6000 वॉरियर, ये वॉरियर कौन? सच्चे वॉरियर नहीं, खरे वॉरियर नहीं। कौन लोग थे? जिनको खाना नहीं मिलता, वो भूखे मर रहे थे, वो इनके आर्मी में ज्वाइन हो गए। और वो पूरे सब लेके, बहुत सारे आते आते मर भी जाते थे, क्योंकि हजारों साल इनकी, हजारों किलोमीटर प्रोसेस इनकी चलती रही थी। तो 6000 जब आए, शायद उसने 7000 लिए, 1000 मर गए बीच में। बुद्ध पीपल हेल्प हिम इन 712। सी हम कैसे लोग, बुद्ध इंडिया के ही थे, फिर भी ही हेल्प अफगानिस्तानी पीपल, एंड मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड, and Buddha people helped in Satsvara, and Dahir was killed. वो भाग गया रन से। भागने के बाद में उसको पीछा करके पकड़ के मार दिया गया। सो किंग वाज किल्ड। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने वो कासिम को हेल्प की। दाहिर वाज किल्ड, इंडिया बिकेम स्लेव। दैट टाइम almost 70%, 60% of India were
became slave. आगे चलते हैं 1000 AC. तो शाबुक्त बिन जिन गौरी, he also came from अफगानिस्तान. आपने अकबर, जोधा अकबर पिक्चर में देखा होगा कि वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसी बातें करते थे. तो इनकी आर्मी जो होती थी, पढ़ी पढ़ाई सिखाई ट्रेंड होती थी. और हम लोग कैसे थे? हम लोग जाति वर्णों में बटे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो ये सिर्फ इन चारों वर्णों में क्षत्रिय लड़ सकते थे, बाकी को अधिकार नहीं था. और ये क्या कहाँ लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है. तो मोहम्मद गजनवी looted villages, temples were demolished and defeated Jaipal and Anandpal. So Jaipal and Anandpal, those were the rulers at 1000 AC, and they were beaten and killed. So they were attacked. No one resisted. Now ये क्यों नहीं रेजिस्ट नहीं हुआ? इसके कारण अनेक है. पहला कारण है जाति वर्ण. तो सिर्फ क्षत्रिय उठा था. ये भी क्षत्रिय लोग होते थे, ट्रेनिंग नहीं होता था. बाकी के लोग जो काश्तकार है, व्यापारी है, ये लोग अपना अपना धंधा करते रहते थे, काम करते रहते. काश्तकार होते थे, खेतों में काम करते रहते थे. उनको कुछ लेना देना नहीं था अपने राज्य से, अपने प्रदेश से. जहाँ हम खाते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, इसका उनको कोई गम नहीं था. एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम वाज वर्ण भेदा. तो ये जो आया, he defeated Jaipal and Anandpal. They were killed. Then Raja Bhim Solanki went to Kachcha. When the area was invaded, he ran to Kachch area and saved life from Shahabuddin Gauri in 1023 AC. बाद में आया Shahabuddin Gauri in 1191, attacked India, killed Prithviraj in 1197 AC. Now ये हमारी दास्तां है, ये हमारा इतिहास है. He was killed. Muslim captured Holy Land. So that time पहले था जैन, बाद में आया बौद्धों का, बाद में हुए अशोक सम्राट, बाद में हुए ब्राह्मण किंगडम, और बाद में हम जब पूर्व की तरफ जाते हैं, तब ये हाल दिखता है जब अफगानिस्तान इन्वेडेड इंडिया by all these people, and they defeated Jaipal, Anandpal, and Somnath temple was attacked and no one resisted. Now Somnath temple was attacked not once but 11 times. No one resisted. तो मैं बता रहा था कि चार वर्णों में सिर्फ एक ही वर्ण हाथ में तलवार लेता था और लड़ता था, और उसको भी ट्रेनिंग नहीं. देखिए, जब वह आर्मी नहीं, सेनाएं नहीं, और उसका मेंटेनेंस नहीं, अलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं, तो जब आक्रमण होता था तब ये क्षत्रिय अपनी तलवार जो जंगी हुई थी वो उठा के लड़ते थे और मारे काटे जाते थे. आई एम वेरी सॉरी टू नो एंड हियर ऑल दीज थिंग्स. एंड हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान, he was also killed in 1197, and who were the culprits? Culprits were those who invited invaders to attack India. तो पृथ्वीराज चौहान तो हमारे चले गए. 1197 में Muslim captured whole India. Qutbuddin Aibak was the first. एंड देन चंगेज खान. ये चंगेज खान कहाँ से है? मंगोलिया से. उसकी एक आंख फूटी थी, हमने इतिहास में पढ़ा होगा. तो ये एक आंख वाला आदमी जो मरे हुए लोग लेके आता है और तुम पे राज करता है. ये लोग कौन थे? उसके सैनिक जो उनको खाना नहीं मिलता था वहां. तो पहले कहते थे इंडिया
भारत एक सुनहरी चिड़िया, और ये सुनहरी चिड़िया के लिए अनेक लोगों ने इस देश पे आक्रमण किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले आया, बाद में चंगेज खान आया, और ये पीरियड है 1221 का। हेवी ब्रूटल किलिंग एंड विलेजेस were looted, blazed with fire and killed. So देखिए, जब महावीर का जमाना था तब पूरे हिंदुस्तान की आबादी कितनी थी? 15,000। अशोक सम्राट क्या जमाने में वो थोड़ी बढ़ गई 25,000। तो उस समय आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये अनेक आक्रमणों से हम लोग मारे गए, लाखों में मारे गए। कुतुबुद्दीन आएगा, उसने सब लोग बंदी बना के मार दिए, और विलेजेस जो होते थे, विलेज पूरे आग लगा देते थे और भाग जाती। और ये मैं पढ़ के इतना हैरान हूं कि हम लोगों ने रजिस्ट नहीं किया, क्योंकि हम अपने धर्म से चिपके हुए थे, जातिवाद। ये चर्चा का विषय है, चर्चा हो सकती है, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है, ये इतिहास है। तो ब्राह्मण हाथ नहीं लगाते थे, क्षत्रिय लड़ते थे, बाद में शूद्र अपने धंधे करते थे, और वैश्य और शूद्र लोग तो काम ही नहीं, उनको लिया ही नहीं सैनिक बोल के। बाद में हजारों लाखों लोग काटे गए। बाद में आया तैमूरलंग इन 1398 AC and captured 1 lakh people and slaughtered. देखिए, उन्होंने 1 लाख लोग बंदी बना ली। बंदी बनाने के बाद में उसने अपनी फौज लगा दी उनको संभालने में। तो फौज, और जब वो दूसरी आक्रमण करता था तब उसको सैनिक कम पड़ते थे, क्योंकि 1 लाख लोग को संभालने में उसके सैनिक लगे थे। तो ये सैनिक को उसने ऑर्डर दे दिया, खत्म कर। जो पूरे 1 लाख लोग बंदी थे, उन्हें 1 लाख लोगों को काट डाला। दैट इज हेवी ब्रूटल किलिंग बाय हिम, एंड विलेजेस वे ब्लेज एंड फायर। एंड बाद में ऐसा होता था कि बूढ़े बच्चे तो मारे ही जाते थे, और जब स्त्रियां होती थी, ये स्त्रियां को पकड़ के लेके उधर हरब में लगाया जाता। दिस इज वेरी सीरियस, सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। ये तैमूरलंग ने किया। बाद में ही कैप्चर दिल्ली, मुल्तान, मेरठ, हरिद्वार तक गया। स्लॉटर्ड पीपल एंड विलेजेस। जहां जहां से लोग गुजरते थे वो गांव को आग लगा देते, मंदिर गिराए जाते थे, तोड़फोड़ किए जाते थे। तो इतना बड़ा मुल्क उसने जीत लिया, दिल्ली, मुल्तान, मेरठ, हरिद्वार। By doing what? Slaughtered people and villages, made inferno and disappeared in Shivalik mountains, जो कश्मीर में है। देखो, ये आदमी तैमूरलंग उधर से आता है मंगोलिया से, और कश्मीर पे कब्जा कर लेता। तो शिवालिक माउंटेन जो कश्मीर में है उसमें गायब हो जाता था। यानी उसका आगे क्या हुआ पता नहीं। हाँ। Now, Mughal Rajya was established in 1526 AC. Babur came with 12,000 army and 500 cannons. 500 तोपे और 12,000 आर्मी। और ये आर्मी कौन सी थी? मैंने पहले ही बताया, वहां के भूखे नंगे लोग जो यहाँ आए और हमारे पे राज किया। तो ये बाबर ने क्या किया? ही कैप्चर्ड काबुल एंड राणा सांगा, our man, Indian man of Rajputana, was invited him to attack Delhi. See the fun. मुझे बहुत अफसोस होता है, हम ही लोगों ने इनको बुलाया आक्रमण करने के लिए। तो बाबर यहाँ आया, आक्रमण किया, बहुत सारे उसने प्रदेश ले लिए। एंड अब ये राणा सांगा को क्या लगता था राजपूताना? उसने क्यों बुलाया इसको? वो उसने इसलिए बुलाया, लूट के
लूट मार करके भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आदमी यहाँ रुक गया और इसने फिर राणा सांगा से लड़ाई की। राणा सांगा ही हेल्प बाबर at the earlier ages, but later when Babur knew that Rana Sanga is a culprit and he is the main culprit, him to attack Delhi, assuming that he will loot and return, but he thought to establish here. Later, Rana Sanga attacked him but failed and died in war. He was winner of Gujarat and Malwa. ना मैं आपको 1526 का कुछ है बेटे, 1526 का बताऊंगा। हाँ, नकाशा के ना, now see that time, this is a भारत का नक्शा है 1526 का। इसमें ये कश्मीर है, ये तिब्बत है, ये नेपाल है, ये राजस्थान, और ये बीच में भाग कौन सा है, ये आज यूपी कहलाता है, लेकिन उसमें लिखा नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये किताब में ये सिंध था, आज पाकिस्तान में। तो ये सिंध का दाहिर, ये काबुल से हजारों किलोमीटर से लोग आए, आक्रमण किए। क्यों आए भाई? लूटने के लिए, क्योंकि वो उधर मर रहे थे। ये सब रेगिस्तान है, राजस्थान में रेगिस्तान है। फिर भी वो आए, लड़े, और ये बाबर जो था, अब ये प्रदेश देखिए बाद में बंगाल बिहार इधर है, इसने लूट लिया। ये इधर से आया तुम्हारा ग्रीक सिकंदर, इसने लूट लिया बंगाल बिहार 18 घुड़सवार लेकर, या 200 समझो, उसमें मतभेद हो सकते हैं विद्वानों में। बाद में राजस्थान, ये गुजरात, मालवा, यहाँ भी, और इस राज्य पर बिहार है, इस राज्य पर, ये पूरे राज्य पर उन्होंने कब्जा कर लिया। हाँ, मुगल राज। सो 1526 का नक्शा बताया मैंने। 1526 का मुगल राज्य एस्टेब्लिश हुआ और बाबर ने उसे एस्टेब्लिश किया। And Ranga Sanga was the main culprit who invited Babur in this country. He was winner of Gujarat and Malwa. Then Ibrahim Lodi 1526 में defeated बाबर। ये इब्राहिम लोदी आया, बाबर को डिफीट किया, बट अटैक फ्रॉम बैकअप आर्मी, यानी उनकी रणनीति ऐसे बनाई अपने से विरुद्ध। तो पहले ऐसे लोगों को बताना कि हम हार गए, भाग रहे, तो ये भागने लगा। यहाँ के लोग समझे, अरे ये तो भाग रहा है, चलो पीछे इनसे वार करे। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बदलाई, ये इब्राहिम लोदी पीछे से आया, वार किया और हजारों राजपूत मारे गए। और बात ये थी, जब युद्ध चलता था, उस युद्ध में जब कहीं एक आधा टेम्पल का झंडा उड़ा देते थे तो लोग समझ जाते थे अपन हार गए, मर कटने में अपना बचाव, तो मर जाते, खुद मर जाते। सो बाबर डिफीटेड लोधी एंड सांगा एंड कैप्चर्ड दिल्ली। राजपूत सरेंडर टू नादिर शाह in 1739 AC. He slaughtered Delhi people more than Genghis Khan. See the fun. बाबर से भी एक से एक ज्यादा लोग आए जो बहुत क्रूर थे। किसका? आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। झाला? राजपूत सरेंडर नादिर शाह 1739, एंड वो नादिर शाह ने क्या लूट के लेके गया इंडिया को? 50 करोड़ रुपीस। उस जमाने में बहुत बड़ी रकम है। कोहिनूर डायमंड, एंड सिंहासन जो सोने का था, वो लूट लेके गया। देयर ही वाज किल्ड इन अहमद शाह किल एंड अफजल शाह अब्दाली, जो कि सेनापति था इसका। तो ये अहमद शाह अब्दाली को
he was killed there. When he returned with all these Kohinoor and 50 crore rupiah and Singhasan, he became head of the state in 1761 AC. Abraham Ahmad Shah Abdali. Ahmad Shah Abdali, ये अफगानिस्तान से आया. He attacked Maratha army at Panipat and became winner, defeating Sadashivarav Peshwa. देखिए, ये पानीपत की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने किताब पढ़ी होंगी, पानीपत. तो पानीपत में जो हुआ, हम सब लोग मिलके गए, और मराठा का राज्य था उस समय. तो ये मराठे राज में ये पूरा जो सदाशिवराव थे, ये सब पेशवा थे. लेकिन ये सब राज थे. इस राज में पानीपत में जो लोग बहुत सारे मारे गए. और अहमद शाह अब्दाली, हम धर्म से चिपके रहे. धर्म से चिपकने का क्या अर्थ है? नहीं भाई, हम ऐसा वार नहीं करेंगे. यानी जो कमीनापन होना चाहिए वार में, वो हमारे हिंदू आदमी में नहीं था, वो हिंदू आर्मी में नहीं था. कमीनापन जो उनमें था. तो पीछे से आके वार करना, लूट लेना, मारकाट करना और अपना कब्जा कर लेना, ये अच्छा, धर्म उनका भी है, धर्म हमारा भी है. धर्म उनके धर्म में भी, इस्लाम में ये बताया गया कि मारकाट गलत है. आखिर मोहम्मद पैगंबर ने भी तलवार उठाई थी आखिर कि भाई नहीं, अगर अपनी बना है तलवार उठाओ. Ahmad Shah Abdali, he was a brutal, and lakhs of army, thousands of people who were from Maratha region, the army created by Shivaji, वो उनका पानीपत हुआ, मारे गए. भागे हुए लोगों को पकड़ के मारा गया. और ये 1761 की बात है. शिवाजी का जन्म 1630 में है और मरण है 1680. 50 साल जिया हो, लेकिन इतना बड़ा राज्य बना के जिया. और इतना बड़ा राज्य मराठों को देके, जहां पूरा मध्य प्रदेश हमारे कब्जे में था. सिंधिया, होलकर फैमिली, होलकर ये जो राज्य था, सेनापति थे, उन्होंने पूरा काबिज कर लिया था. और ये पूरा बना के, यानी ये 1761 में हम लाखों में गए. लेकिन एक बात गलत की. क्या बात गलत की? कि हमने हमारी फैमिलीज लिए तीर्थाटन किए, काशी, मथुरा, आगरा सब किए. और ये जो लोग अफगानिस्तान से आते थे, फैमिलीज नहीं लाते थे. और हमारे ये लोग अय्याशी से मरे उधर जाके, और बेईमान थे. सब कुछ नुक्से वो अब्दाली को बता दिया था उसने. तो अब्दाली बिकेम हेड ऑफ द स्टेट और उसने वार किया. पानीपत का वार हुआ, सदाशिवराव मारा गया, पेशवा. एंड इतने जो हेड थे, 10-15 हेड थे, राजा थे, उसमें यूनिटी बिल्कुल नहीं थी. पहले जब आखिरी वार हुआ पानीपत का, मैं पानीपत की किताब पूरी पढ़ चुका हूं, और वो किताब में लिखा है, विश्वास पाटिल की किताब है, लिख लो नाम, पानीपत बाय विश्वास पाटिल. तो उसमें लिखा है कि ये मराठा आर्मियों में यूनिटी नहीं थी. एक बात बोलते थे हम पुराने ढंग से लड़ेंगे, और एक लोग बोलते थे हम नए ढंग से लड़ेंगे, नए रणनीति से लड़ेंगे. तो इसमें झगड़ा हुआ. या आपसी झगड़ों में अहमद शाह अब्दाली जीत गया और वो पूरा पानीपत हुआ. काज नो यूनिटी बिटवीन आर्मी हेड्स. ये बहुत बड़ा मौका था जो इंडिया को हम कैप्चर करके. और हम एक बात मैं बता दूं, विश्वास पाटिल के पानीपत की किताब में बताया है कि मराठों ने दिल्ली पे 1.5 महीना राज्य किया. ये बीच में, बिफोर अब्दाली. It was a golden chance to win Delhi, but attempts were in vain. Peshwa ruled Delhi for 1 month. In Punjab, Guru Gobind Singh and Shivaji in Maharashtra and fought Mughal sincerely. देखिए, मुगल के अगेंस्ट में कौन था?
कौन प्रतिरोध करता था? हमारा मराठा वॉरियर शिवाजी, जो बाद में छत्रपति बना। और उत्तर में थे गुरु गोविंद सिंह। तो ये लोगों ने मुगलों के अगेंस्ट में लड़ाइयां लड़ी। In 1857 there was again a unity to free India from Mughals. So Maharashtra fought Mughal sincerely. English, French, Dutch, Portuguese followed divide and rule policy and succeeded and became ruler in India. Divide and rule. हम लोग तो हिंदू धर्म के थे, जातियों में बटे थे, लेकिन फिर भी हम ये जो इन्वेडर्स है, बाद में इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, डच आए, पोर्चुगीज आए, इन्होंने भी हमको आपस में लड़ाया। अलग अलग राजा थे, कितने स्टेट्स थे उस समय, कितने रियासतें थी? 550 रियासतें थी। ये हिंदुस्तान में 550 रियासतें थी। सरदार पटेल की किताब में आप सुने होंगे, शीतल की तरफ से, यह किताब में लिख लो, 550 रियासतों को एकत्र किसने लाया? सरदार पटेल ने लाया। और कितना कठिन काम था। फिर भी दो लोगों ने वर्ण किए, एक तो हैदराबाद वालों ने और दूसरा जूनागढ़ वालों ने, जो पूरे हिंदू मुस्लिम राज्य था, पूरा मुस्लिम। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट यूनिटी. After all, there was a military action, and Junagadh and Hyderabad was taken in India. So British rulers against the British rulers, Scindia and Holkar helped British. See the fun again. ये हमारे लोग सिंधिया बोले तो ये सिंधे है, और होलकर ये हमारा मराठी आदमी है, जो हाफ ऑफ इंडिया पे राज करते थे हम लोग। लेकिन हम 1857 के युद्ध में एक साथ नहीं आ सके, अलग अलग खेमों में बटे रहे और हारते रहे, कटते रहे, मरते रहे। और आर्मी का रूल था, हिंदू धर्म से चिपके रहो, चाहे हम मर जाए, लेकिन हम पीछे से वार नहीं करेंगे। सीधी फन। और मुसलमानों ने क्या किया? पीछे से वार किया। तो हम अपने धर्म से डटे रहे। अच्छे धर्म अच्छा है, सभी धर्म अच्छे, कोई नहीं कहता किसी को काट मार करो, लेकिन ऐसा हुआ है। ये सिंधिया होलकर हमारे लोग थे, बट दे हेल्प ब्रिटिश पीपल, नॉट आवर ओन पीपल। मराठा वॉरियर शिवाजी या गुरु गोविंद सिंह इन पंजाब। आगे चलते हैं। बाद में एक ही फर्स्ट वुमन वॉरियर है रानी लक्ष्मीबाई, फर्स्ट वुमन वॉरियर, हेल्प नाना पेशवे एंड मुस्लिम हेल्प बादशाह जफर। बादशाह जफर है दिल्ली का आखिरी महाराजा राजा था। आखिर जफर को ब्रिटिशों ने पकड़ के उधर भेज दिया ब्रह्मदेश में, रंगून में, और वहां मर गया। इसीलिए वो जफर कहता है, 2 गज जमीन मिली तेरे दयार। ये उसका वो कवि था, लेकिन बादशाह था, लेकिन कैद कर लिया गया और भेज दिया रंगून में, ब्रह्मदेश। ब्रह्मदेश भी इसी का हिस्सा था। रूलिंग इंडिया फॉर 170 years, 75 years, Englishmen left India due to more by international reasons and very less by internal agitation or revolt. Many lives were sacrificed during the revolt. कौन कहता है कि हमें बिना खड़ग बिना ढाल आजादी मिली? वो कौन सा कवि है जिसने कविता लिख दी, दे दिया मैं आजादी बिना खड़ग हम बिना ढाल? इतने सारे लोग मारे गए। आजाद हिंद सेना के 26,000 लोग मारे गए, हमें पता नहीं है। 26,000 लोग मारे गए। और ये पार्टीशन के समय, इंडिपेंडेंस जब मिला 1947 में, तो रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते मर गई। और ये बादशाह जफर को भगाया गया ब्रिटिशों ने रंगून में, बाद में ब्रिटिशों ने, और इंडिपेंडेंस मिला। लेकिन इंडिपेंडेंस में लाखों लोग मारे गए। We were warriors but were defeated. Why defeated? पहला कारण धर्म। धर्म से चिपके रहो। बगले
अच्छा, क्यों चिपके रहे लोग? क्यों आर्मी चिपकी रही? क्यों नहीं पीछे से वार करते रहे, जो कि मुसलमानों ने किया? हम मरते रहे लेकिन पीछे से वार नहीं की, क्योंकि धर्म से चिपकना। और धर्म में ये होता था कि जो भी मुसलमानों के हाथ में गया धर्म भ्रष्ट हो गया, छू भी लिया तो धर्म भ्रष्ट हो गया। ऐसे में अगर बताओ वो आर्मी वॉरियर जो है क्या करेगा? क्या करेगा? फॉलोइंग आर द रीजंस। ये रीजंस है डिफीट के। व्हाई वी वर डिफीटेड ऑलवेज, व्हाई वी आर नॉट रजिस्टर्ड, दैट इज द cause of the religion. Religion is the cause of defeat. Then following are the reasons. अब एक एक करूंगा. ओल्ड स्ट्रेटेजी वार, जब बाबर आया तो 12,000 सैन्य लाया और 500 तोपे लाया. हमारे पास तोपों की जानकारी नहीं थी, बंदूकों की जानकारी नहीं थी. हम ओल्ड हथियार से लड़ते रहे, भाला, तलवार, धनुष. और धनुष भी कैसा था हमारा? 3 मीटर लॉन्ग. कैन यू इमेजिन? आज का हमारा धनुष कितना होता है? हार्डली 1 मीटर. तो ये प्रत्यंचा को पकड़ के, पांव से पकड़ के खींचते थे और तीर चलाते थे. तो देखिए स्विफ्टनेस कहाँ से आ गई. हमारी इतनी ढीली आर्मी थी. क्यों? कि नहीं, नया सीखना पाप है. ये हिंदू धर्म मनुस्मृति में लिखा गया. नया कुछ सीखना बोले तो पाप है. ओल्ड स्ट्रेटेजी ऑफ वार, more army training was considered sin. Monopoly of Brahmins, God-made Vedas and scriptures, corruption. थोड़े से पैसे दे दो, उसका पूरा अपना इतिहास ले लो. ग्रीडीनेस, क्योंकि हमारा आदमी 100 रुपए में 10 दिनार में बिक जाता था. They did not accept any new strategy in war. और ये लोग जो आए 500 तोपों के साथ में आए, 12,000 सैनिक के साथ में आए. भले ही वो सैनिक अनट्रेंड हो, फिर भी 12,000 तो दिखते थे. यानी वो उनके नंबर से हम डर जाते थे कि हम हार जाएंगे. और आपस में हम लड़ते थे हर एक राजा के साथ में. जब 550 रियासतें थी, इतनी रियासतें थी, तो ये लोग अपने आपस में लड़ते थे. ऐसा सऊदी अरेबिया भी हुआ. in the time of मोहम्मद पैगंबर, कबीले में रहते थे लोग, आपस में लड़ते थे. और ये लड़ना क्यों था? क्योंकि वो है तो पूरा रेगिस्तान. रेगिस्तान में कुछ भी उगता नहीं. आज भी सभी बाहर से ही माल आता है और खाना खाते हैं वो लोग. आज वो समझ गए कि अब हमारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे. रेगिस्तान में पेट्रोल है, बाद में समझा. दुबई अगर गए होंगे तो समझता होंगे, उनके म्यूजियम देखो आप, वहां समझेगा आपको. तो मोनोपोली ब्राह्मी था. गॉड मेड वेदास एंड स्क्रिप्चर्स, करप्शन, ग्रीडीनेस. देन धर्मनीति वाज वेरी डिफेक्टिव so far as war is concerned, so far as nationality is concerned. यानी मुस्लिम का हाथ भी लग जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता था आदमी. धर्मनीति attacked heavily with religion, attached heavily with religion. Most unfortunate part, wrong war strategy. यानी वो पीछे से वार करते थे, हम आगे से वार करते थे. मरना मारना पसंद करते थे. अच्छा, वार में अगर वॉरियर लड़ता था तो जो भाग के आता था उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे हिंदू धर्म आज पर मनुस्मृति. वर्ण भेद, दैट वाज ए प्रॉब्लम. ये मैं बात कर रहा हूँ 1700 की. 1700 वर्ण भेद was the prime reason. No other caste other than क्षत्रिय was allowed to fight. अच्छा, ब्राह्मण तलवार उठा सकता है, लेकिन कब? जब गायें मरती हो, गौएं मरती हो, जब स्त्रियों को धक्का लगता हो, इसी समय वो ब्राह्मण क्षत्रिय जैसा तलवार को हाथ लगा सकता है. एंड देयर वाज नो ट्रेनिंग. तो जब आक्रमण होते थे, कोई हमारे यहाँ ट्रेन्ड वॉरियर नहीं रहते थे. तो क्या वॉरियर होते तो क्या करते थे? जान दो ना. वो अगर सोमनाथ लूटने जाना है तो जाने दो, अपने को क्या करना है.
ऐसी नेशनलिटी हम लोगों में थी। यानी इतने सारे गांव बीच से निकल जाते थे, वो लूट के जाता था, फिर भी काश्तकार अपने खेतों में काम करता था, व्यापारी अपने व्यापार करता था, ब्राह्मण अपने किताब में रहते थे, और क्षत्रिय लड़ने में जाते। तो क्षत्रिय बता, इतने सारे क्षत्रिय अगर मर गए तो बचेंगे कौन? बचते कम थे, तो लड़ेगा कौन? न वैश्य लड़ सकता है, न ब्राह्मण लड़ सकता है, न शूद्र लड़ सकता है। तो ये क्षत्रियों में से भी जो कौम है, ये इनमें से बहुत सारे लोग कम हो जाते थे, क्यों? मर जाते थे। और ये जो बाहर के जो इन्वेडर्स थे, सभी लोगों को, ज्यादातर स्त्रियां उठा के लेके जाते थे, और सब। और तीसरी बात यह है कि हर राजा बीच बीच में आक्रमण करते थे अपने ऊपर। हमारी हिंदू राजा राज्य करते थे, और ये सरेंडर कर जाते थे मुगल लोगों को, और कहते थे, और वो मुगल कहते थे मुस्लिम धर्म अपनाओ। तो ये खुद ही नहीं अपनाते थे, वो खुद और उनकी पूरी जनता। तो ये यहाँ के जो हिंदू है या मुस्लिम है, ये कुछ ईरान अरब से नहीं आए, ये सब हिंदू लोग है, कन्वर्टेड हिंदू। और ये किसने किया? राइट फ्रॉम मोहम्मद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, बाबर, तैमूर, ये पिछले अगर इसमें जाओ तो आपको पता चलेगा, ये लोग हैं जो लाखों में मुस्लिम बनाया। बाद में वर्ण भेदा, ये तो हम सीख लिए। बाद में सेनापति, वॉरियर्स बिकेम ट्रूथफुल टू हेड। देखिए, अगर सेनापति उठ के रन से भाग जाता है, रणछोड़ दास वो भाग जाता है, तो बाकी की आर्मी समझ जाती थी कि अपन हारने वाले हैं, भागो। अब ये भागते हुए सैनिकों को मुगल लोग काटते थे, तो हम मर कट जाने के लिए तैयार थे, मर कट जाते थे, लेकिन वापस नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के साथ में हमने संपर्क किया, और मनुस्मृति में लिखा है कि वही यदि मुस्लिम आदमी को स्पर्श भी किया हो तभी वो धर्म भ्रष्ट हो गया। तो ये सी फन उसको न अपने में लेते थे, न दोस्तों से अपनाते थे, न उनकी स्त्रियां अपनाती थी, और पूरा प्रदेश उनको अपनाता था, उनको जैसे अलग डाल देते। तो इतनी ऐसी जो बात थी, ये बहुत आज की जमाने में गलत है, लेकिन उस जमाने में वो चलती थी। मैं 1721 की बात कर रहा हूँ। सेनापति मर गया, सभी लोग भाग जाते। तो ये ऐसा हमारा वार था उस समय। एंड ऑल द वॉरियर्स वेर ट्रूथफुल टू द सेनापति। नो सिंक्रोनी अमंग अदर्स, स्लेवरी ऑफ रिलीजन। अच्छा, दूसरा फास्टिंग, ये धर्म से चिपके रहना, नहीं भाई आज गुरुवार है हम भूखे रहेंगे। फास्टिंग, रिलीजन, रूल्स फॉलोड स्ट्रिक्टली इन वार। तो ये वार में ऐसे रूल्स हो सकते? भूखा आदमी लड़ सकता है? सोचो आज, क्या भूखा आदमी लड़ सकता है? ऐसे भूखे लोगों को देखकर वो मुस्लिम लोग आते थे, काट के चले जाते। तो इसका कारण क्या हुआ? धर्म में लिखा है गुरुवार करना, यही दिन उपवास करना, चतुर्थी करना। तो ऐसे भी उस समय जमाने में था, और ये भूखे लोग वॉरियर नहीं हो सकते, और वो लड़ ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा एक था अश्वमेघ। राम के जमाने में आपने पढ़ा, रामायण में देखा होगा, रामायण में अश्वमेघ होता था। वो घोड़ा जहां जहां जाता था, वो प्रदेश उसका हो जाता था। ये अश्वमेघ यज्ञ में, तो अश्वमेघ यज्ञ में उस समय सभी राजा लोग डींग मारते थे कि भाई नहीं, हम अश्वमेघ करेंगे। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि राम ने अश्वमेघ किया था, लेकिन यहाँ के बहुत सारे राजा थे अपनी डींग मारने के लिए, हम अश्वमेघ करेंगे। तो देखिए, अश्वमेघ यज्ञ जब होता था, तब वो घोड़ा जब ऐसे आगे आगे चलता था, उतना प्रदेश इनके कब्जा में आता था। लेकिन ये
वॉरियर जो शस्त्र बनाने वाले लोग थे, दिस वाज आल्सो नॉट सिस्टमैटिक। शस्त्र बनाते थे ये लोग, उनमें इंप्रूवमेंट कुछ नहीं हुआ, प्रोग्रेस कुछ नहीं हुआ। 3 यार्ड का धनुष्य 1 यार्ड में नहीं आया। क्यों? क्योंकि संशोधन नहीं हुआ, अन्वेषण नहीं हुआ। और ये अश्वमेध यज्ञ में जो शस्त्र बनाते हैं उनको मार दिया जाता था, उनको बलि चढ़ा दिया जाता था। ये शब्द है, बलि चढ़ा दिया था। तो see the fun of Hindu religion and so-called army rulers that time, that they help invaders. Sorry, मेरा टाइम हो गया शीतल, मेरा टाइम हो गया। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, सो वी कैन स्टिल कंप्लीट इट मे बी इन 5 मिनट्स। 5 मिनट दो, 5 मिनट। यस, श्योर। To save Dharma, Buddha, Hindu, Jain, they all fought amongst each other as per Dharma, but enemy fought brutally with no norms. ये मैंने यहाँ लिखा है, कमीनापन, कनिंगनेस, कमीनापन नॉट फाउंड इन हिंदू आर्म्स। तो ये कमीनापन हम में नहीं था, इसलिए हमारे। द नेक्स्ट इज दी नेशनलिटी, राष्ट्रीयत्व तो बिल्कुल नहीं था। और ये इतने सारे बड़े प्रदेश में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और इधर सोमनाथ से लेकर पुरी तक, इतना बड़ा प्रदेश, यानी 3000 किलोमीटर लंबा खड़ा और 2000 किलोमीटर लेफ्ट राइट में है। ये प्रदेश में हम सारे आपस में लड़ते रहे। इनमें ये सब प्रदेशों में क्या था उस समय का, मनुस्मृति में लिखा है, पढ़ो ये किताब, उसमें सब मिलेगा आपको। मनुस्मृति के आलेख, जो अशोक सम्राट अशोका के जमाने में भी आलेख छपे हैं, उनके अशोका चक्र में। तो ये नेशनलिटी नहीं थी। और नेशन बोले तो क्या, देश परदेश बोले तो क्या, क्या अंडरस्टैंडिंग थी? 480 किलोमीटर की एरिया के बाहर आदमी गया, वो परदेश में गया। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन। हमारे बहुत सारे इसमें लिखा है कि समुद्र को छलांग नहीं लेना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे ये अपने एरिया में 480 के बाद में फॉरेन होती थी। आज भी अगर तुम साउथ में जाओ तो तुम फॉरेनर हो। वहाँ तमिल नहीं बोल सकते, आंध्र प्रदेश में नहीं बोल सकते उनकी भाषा तेलुगु। तो अलग अलग भाषाएं में ये देश बटा है आज भी। अश्वमेध होता था, नेशनलिटी नहीं थी 480 किलोमीटर का घेरा था, बाद में प्रदेश होता था, और इसमें भी जाति भेद था। अब मैं ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा। बाद में नो प्रोविजन फॉर आर्मी, पैसा नहीं था। टाइमली अप्रोच फॉर वार, यानी डंडे खेतों में से उठा के वार में चले जाते थे। टाइमली वार, अरे भाई आ गया आ गया आ गया, भागो 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 भागो, पकड़ो पकड़ो। तो हाथ में जो कुछ मिलता था वो जाता था, उसे मारकाट करते थे और कट के आते थे। कट के आना नहीं, कट के मर जाते थे। नो प्रोविजन। देन इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन हम में बिल्कुल नहीं थी। डिप्रेशन, डिप्रेशन में क्यों वॉरियर चला जाता था? क्योंकि उसे लगता था अगर मैं यहाँ नहीं लड़ता हूँ और जाता हूँ तो मुझे कोई लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सी दी फन, कोई लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए उसमें डिप्रेशन आता था और वो मरना पसंद करते थे बगैर अपने प्रदेश में जाके। नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन तो कभी नहीं रहा। 550 रियासतें थी लेकिन कोऑपरेशन नहीं था। साइकोलॉजिकली वीक, देन फॉट ओनली डिफेंसिवली टू सेव एंड नेवर हैड स्ट्रेटेजी टू अटैक। ये हमारे धर्म में आज भी है, आज भी है। शाह यही कहते हैं हम पहले न्यूक्लियर बम नहीं डालेंगे। आज भी वही नीति है, धर्म नीति। तो ये कारण है अहिंसा परमो धर्मा। अभी लास्ट स्लाइड है, मैं 2 मिनट लूंगा। इंडिया सपोर्ट स्लेवरी फ्रॉम 327 BC, यानी 2327 साल पहले तो आज 1947 तक, ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन टेनेट्स, रिलीजन एंड इलिटरेसी।
इलिटरेसी का क्या मतलब है कि ये वर्ण भेद में, चतुरंग नीति में कि इलिटरेसी आई, 75% लोगों में इलिटरेसी है, उनको पढ़ाया नहीं जाता था. दे वर नॉट एक्सेप्टेड फॉर schools. Only Brahmins were allowed, not Kshatriya. Kshatriya were allowed to some extent, Brahman and Kshatriya, but not Vaishya and Shudra. And Vaishya and Shudra ये 50% लोग थे, more than 50%. Then no progress of arm strategy. जैसे मैं धनुष का उदाहरण दिया, धनुष 3 यार्ड का ही रहा, 1 यार्ड का नहीं बना. और देयर वाज नो डिस्कवरी इन शास्त्र. तोपे हमने कब देखी? जब बाबर आया तब तोपे देखी. वो 500 तोपों के साथ आया और 12,000 सैन्य लाया. 12,000 सैन्य भी वही भगाए हुए लोग थे वहां. Then after 1947 situations remains the same. It is very pitiable. हमें इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में मिला. Many reasons are responsible for the defeat, debacle, but dharma was prime cause. बहुत सारे हैं, आप किताब पढ़ोगे तो बारीकी में जाओगे. बाद में चाइना अटैक, आज भी क्या स्थिति है? After 1947, China attacked in 1962 and occupied 40,000 square kilometer area, that is Siachen area, and we could not capture them. Then no new arm budget, weak arm strategy. 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ, but they defeated. They were defeated, not us. But he attacked again in 1971, war between India and Pakistan. Then in 99, Kargil war, and attack on parliament, terrorism continued till today. Now here I sum up and conclude my lecture that how we were defeated, and ये इतिहास से हमको सीखना चाहिए. इतिहास क्यों लिखा जाता है? इतिहास cannot be changed. It cannot be changed. But learn something from that. जब बाबर तोपे लेकर आता है, तुमने तोपे क्यों नहीं बनानी शुरू की? कब तोपे बननी शुरू हुई? शिवाजी ने शुरू की. मराठा किंगडम. ये मैं मराठा हूं इसलिए मैं मराठों की तारीफ नहीं करता, लेकिन सीखा तो शिवाजी ने सिखाया लोगों को कि भाई वो तोप लाते तो हम भी तोप बनाएंगे, वो बंदूकें लाते हम भी बंदूकें बनाएंगे. तो ये देश को किन किन लोगों ने इन्वेट किया? डच, ग्रीक, पोर्चुगीज, अफगानिस्तानी, चाइनीज and some part of west side Saudi Arabia. इतने लोग यहाँ आके इन्वेट करके गए, हम मार खाते रहे, फिर भी हम सुधरे नहीं. अभी थोड़े सुधरे. मैं इतना नहीं कहूँगा. I conclude and thank you very much for hearing me. If I am wrong, you may correct me, but please read this book so that you will know what was our history and why we defeated. Thank you very much. Thank you so much for this exhaustive sharing. कई बार महसूस होता है कि हिस्ट्री हमसे उस तरह से शेयर की ही नहीं गई जो ओरिजिनल थी. हर बार लिखने वालों ने अपनी कन्वीनियंस के साथ उसको लिखा, री राइटिंग किया एंड प्रेजेंट किया. सो आई थिंक दिस इज रियली कमेंडेबल. आपने इतने एफर्ट्स लिए, इतना डिटेल में बताया, एंड आई ऑल्सो जस्ट कुड नॉट स्टॉप यू एनीवेयर, क्योंकि इररेजिस्टिबल था ये सब कुछ जानना. एज एन इंडियन एज एन इंडियन ये हमारा हक है कि हमें अपनी हिस्ट्री ढंग से बताई जाए, और वो आज आपने किया है जो शायद हमारे टीचर्स ने करना चाहिए था या हमारे एकेडमिशियंस ने करना चाहिए था. So thank you so much for this effort. Thank you. आप शेयरिंग क्लोज करिए तो मैं शेयर करती हूँ. Give me a minute's time. I need to share. बंद करनी पड़ेगी.
Going ahead from here, so I'm presenting the next book with you. This is again going back to your roots. And I'm so delighted that I asked for this book from my bhabhi and she gave it to me. So it's a it's really a wonderful book, a very quick read. And सबसे अच्छी बात इस किताब की ये है कि बहुत क्रिस्प है, टू द पॉइंट है और शानदार है. So I'll start sharing. Is my presentation visible to you all? Yes. Thank you. So this is Indian Superfoods, written by Rujuta Divekar. We have also had another book reviewed, written by Rujuta Divekar, that was on weight loss. So those of you who heard the review, you know that Rujuta writes absolutely straight to the point. She's very Indian. She's very much into authentic food and authentic nutrition follower hai ye. So if you look at her academic background, she has done her Future of Foods course from university in Germany, then sports dietitian course from Australia, PG in sports science and nutrition from SNDT Mumbai, and so on. So she happens to be a celebrity dietitian, but that is not something for which I picked this book. But I'm a huge fan of our cuisines, our inherited values. And so when I saw the book, the details, I just thought that this is for me and for me to share with you. So first of all, when she says superfood, what is it that she asks from a food to make it superfood? She says that that should grow naturally in the same land where you live. Isn't that important? Why is this important? Because you are comfortable with the land, with the temperature, with the kind of seasons that occur in that land, and so is the food that is grown in your area. So your body will easily adapt to that food and will be absolutely in harmony with that food. They are rich in micronutrients and taste. Every part of the crop or the plant can be used in unique way. That these are the criteria for an item or food to become a superfood. They encourage diversity in your diet and they lead to sustainable lifestyle, help local economy, and make sound ecological sense. Future foods are local foods. Now, Rujuta happened to participate in a conference somewhere in Germany, and she shares that the agenda there was to find out the future foods, food that is going to be acceptable in 2030 or so on. So in that conversation where delegates from across the globe participated, when they discussed various aspects, the result was that local foods are going to be your future foods. But developing countries give up eating the local foods because it's less prestigious to eat. Isn't it? अगर हम किसी को प्राउडली कहते हैं आज हमारे घर पिज्जा बना है, लेकिन क्या हम प्राउडली कहते हैं आज हमारे घर खिचड़ी बनी है? नहीं कहते ना. तो यही बात है, हम उन चीजों की वैल्यू कम करते हैं जो हमें इजीली मिली है. West had adapted our local food as novel food, having therapeutic values, weight loss, and well-being properties. Example लेते हैं. Curcumin has entered the health stores as antidote to fatigue and obesity. But do you really, can you recollect or realize that curcumin is present in harad or haldi that was always there in your kitchen and has been used in your daily meals so well? Most of the vegetable oils
have now been proved unhealthy, but we have shifted to refined oils like olive oil for omega-3. Now you have to note that the UK health guidelines have actually said that omega-3 is also not necessary for healthy heart. She says that we are struck with double burden of malnutrition. Of course, we understand that poor cannot access a lot of food items because of cost and affordability. But the rich, because of their disconnect with our culture and our reality, deny the easily available protein in dal chawal, taken as an example here, and choose to buy protein powders or many other options to reach the protein need. Why can't we go back to our grandmother and ask her? So where can I find protein from? And we can actually have wonderful solutions found in our own kitchen. Why can't you do a research कि मैं protein powder से कितना protein ले रही हूँ और बाकी चीजों में मेरे पास जो already available है उन चीजों में मुझे कितना protein मिल सकता है? Why can't we do that? In fact, you don't even have to do it. Your grandmother, your great grandmother have already done it. You just have to ask and follow them. Have trust. And ये मैं नहीं कह रही, ये रुजुता कहती है, and I totally agree with her. Switch from local food to more industrialized or exotic food. Avocado ढूंढते हैं market में. हम लीची ढूंढ के लेकर आते हैं, लेकिन हम अपना native orange नहीं खाना चाहते हैं. हम मौसम्बी नहीं खाना चाहते, हम चीकू नहीं ढूंढ रहे. Nutrition bodies the world over have recognized a phenomena called nutritional transition, where ancient communities are becoming prone to diabetes, obesity, heart, and other lifestyle diseases after switching from their local seasonal foods to more exotic and non-native and mass-produced food items. This is really a challenging thing. Yes. Now, in this book, Rujita has referred to 10 superfoods. I'll quickly read those 10 superfoods for you. I'll be reviewing only 2 of them, and I have left the others for you to really read. You must have this book. This is a must-have option, not an option rather. So, the superfoods are, where in her list are ghee, kokum, banana, kaju, ambadi, rice, coconut, arib, jackfruit, and sugar. These are the 10 food items which she has recognized, and she has really elaborated on it wonderfully. So I'll be taking ghee and rice today, sharing with you what it has, why should we have it, how much we should have it, and much more. She has also written recipes, how to make it, but yes, thankfully we all know how to make ghee and rice. So I did not go into that. Well, there's a wonderful Sanskrit saying that goes like this, that yatha jivet sukham jivet, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. जैसा जितना जियो सुखी जियो, सुखी रहिए हमेशा, और अगर लोन भी लेना पड़े तो लो, लेकिन हमेशा घी पीते रहो. सो अगर आपके पास घी पीने के लिए पैसा नहीं है तो प्लीज आप ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेकिन घी पीना बंद नहीं कर सकते. There's another that she has shared. She says that ज्येष्ठत्वम जन्मना नैव गुणैः ज्येष्ठत्वम उच्यते. सच तो है, जन्म से हम ज्येष्ठ या श्रेष्ठ नहीं होते, हम अपने गुणों से श्रेष्ठ होते हैं. गुणात गुरुत्वम आयेत दुग्धम दधिम घृतम क्रमात्. बर्थ से हम ग्रेट नहीं होते, हम अपने थॉट से, अपने गुणों से, अपने विजडम से ग्रेट होते हैं. और एग्जाम्पल के लिए दूध, दही और घी, इनका एग्जाम्पल दिया है कि ये तीनों का ओरिजिन सेम है, विच इज मिल्क. लेकिन अगर आप इनके गुण देखेंगे तो बहुत अलग है. इनका जो कंट्रीब्यूशन है इनटू योर न्यूट्रिशन इज वेरी डिफरेंट. वेल, व्हाई इज घी अ सुपरफूड?
Superfood is this superfood is made up of SCFA, that is short chain fatty acid, which is the world's top performing fat. So alongside the usual function of fat, what it also does, it promotes fat burning from stubborn fat areas of your body, healthy bacteria in your guts, health of your heart, and health of your brain. So ये सारे गुण शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में होते हैं जो घी में बिल्कुल खूबसूरती से भरे हुए. Addition of ghee in your food reduces the glycemic index of your food. Diabetes, obesity arise out of insulin resistance, and the best way to improve this is to reduce the glycemic index of your food. From here arises the combination दाल चावल घी. कभी याद है कि आपकी माँ या दादी ने आपको दाल चावल बिना घी के दे दिया या पूरन पोड़ी लूखी दे दी? She would give you a टपली on your head and say पूरन पोड़ी घी के बिना कोई खाता है क्या? Isn't it? So she knew what she's doing. She never wanted to make you fat or obese or anything like that, which you thought it was doing to you. Right? Is that right, kids? है ना? हम घी खाना पसंद नहीं करते हैं, अभी रोटियां सूखी पसंद है हमें. So puran puri without ghee, dal chawal without ghee, many things without ghee would not do, because it's going to reduce the glycemic index of your food. Ghee is not just a high performing fat, but an excellent partner to other food, complementing them to work better and harder. Ghee ensures regulation of blood sugars by slow and steady rise of it in your meal. So when you take your food with ghee, आपका जो blood sugar level धीरे धीरे बढ़ता है with your food, वो slowly बढ़ता है because of ghee. Thus helping not only to combat diabetes and obesity, but also heart disease. Hypothyroidism in mothers, new mothers who have just given birth to their child, which is a common trouble after delivery of a child, doesn't occur to the one who has taken a lot of ghee from conception till lactation. Now, if I can generalize, I didn't do that, but most of my friends, they would say, बस घी मत दो, वजन बढ़ जाएगा तो कम नहीं होगा. You know, during pregnancy, after delivery, they would try to avoid ghee, but that was the worst thing that they were doing to themselves. So, ज्यादातर 30, 35, 40 एज की लेडीज जो है उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, and that actually originated from this. Ghee is a terrific lubricant and it gives your spine stability and strength. The short chain fatty acid in ghee is now recognized as a prebiotic, something which creates an environment conducive for the gut-friendly bacteria to prosper. This also is what makes it a great anti-allergen. So I am a non-medico, but definitely इतनी बेसिक टेक्निकल टर्म्स हम सभी समझ सकते हैं, और टेक्निकली जब कोई चीज कन्वे की जाती है तो वो ज्यादा समय तक हमारे साथ रहती है, कन्विंसिंगली हम उसे फॉलो करते हैं. सो मुझे बहुत अच्छा लगा when Rujuta took this effort to really go deeper into the layers of analyzing it. And now this is the best part of the book. For every superfood, she has given a chart like this, which says fiction and fact. So she says that fiction are the things that are our myths or the belief system that we are carrying these days. Ghee is fattening, mote ho jate hain ghee khane se. So ghee by nature is lipolytic. It breaks down fat, and this is due to its unique short chain fatty acid structure. Then we say ghee is a saturated fat. It is a saturated fat, yes, but a unique one. It not just burns preferentially as fuel inside your body, but actually helps mobilize fats from stubborn fat areas, not like the unhealthy fats you find in your biscuits, cakes and pizzas. हम घी को मना कर देते हैं, लेकिन किसी ने केक ऑफर की तो हम मना नहीं करते, isn't it?
So we have to understand what we are doing with ourselves. Ghee will increase cholesterol, we say. Well, ghee reduces cholesterol by increasing the contribution of lipids to metabolism. Liver produces excess cholesterol under stress and ghee helps you de-stress. याद है जब पिछली बार आपने पूरन पोड़ी दाल बाटी खाई थी, क्या बढ़िया नींद आई थी उस दिन, isn't it? और ये आपको de-stress करने के लिए था. So sleep better and wake up fresher. So when you wake up fresher, you will not have stress and automatically cholesterol level drop हुआ. Ghee is harmful for the heart, we say, हमारा belief है. Rich in antioxidants, conjugated, linoleic, I'm sorry for if I'm pronouncing it wrong, I'm not a medico, and fat soluble vitamins like A, E, and D. Ghee has just what you need for a healthy heart. So we say, fine, ghee is good, but just not eat it too much. So whenever you say that just not eat it too much, she says that your stomach knows it better than you. तो आपका stomach automatically चीजों को मना कर देगा. Don't worry. You will not really overeat it ever. So this was ghee. So I want a promise from all the kids and elders here कि अब कम से कम आप घी को मना नहीं करेंगे. दिन में कम से कम 3 से 4 टीस्पून घी आपके मील्स में जाना ही चाहिए. This should be your promise to yourself. Please do it. All right. So the next superfood that I've chosen from the book for you is rice. Again, कितने सारे लोग यहाँ ऐसे होंगे डेफिनेटली जो कहते हैं राइस नहीं खाना मोटे हो जाएंगे, राइस नहीं खाना मुझे डायबिटीज है, या रात में राइस नहीं खाना चाहिए वरना तो पक्का ही मोटे हो जाएंगे. Isn't it? Obesity is like on our nerves these days. Okay, so rice is a symbol of health, wealth, and fertility. Well, when Rujuta starts writing about rice, she has so wonderfully identified all the locations where we have rice. अक्षदा, जब शादी के समय हम अक्षदा फेंकते हैं वो राइस होती है. जब नई बहू घर आती है तो वो उस घड़े में राइस होता है जिसे वो लांद कर आती है. आप जो कलश रखते हैं आप उसके नीचे राइस रखते हैं पूजा के समय. आपकी पूजा की थाली में राइस होता है. कितनी सारी ऐसी जगहें हैं जहां, जैसे यहाँ लिखा है कि बच्चे को जब उसका फूड शुरू करते हैं हम 4th या 5th मंथ में, तो सबसे पहले राइस और दाल का पानी देते हैं या राइस बारीक करके खिलाते हैं. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइस एंड इट इज वन ऑफ दोज रेयर फूड्स जो सभी दोषास, वात पित्त और कफ, इन तीनों दोष को सूट करता है. बहुत कम ऐसे फूड है, कुछ फूड होते हैं जो वात कर देते हैं और जो फूड वात को चलते हैं वो कभी कभी पित्त को नहीं चलते हैं, and so on. It has high level of an essential amino acid called lysine. Lysine cannot be produced by your body, so you need to consume it from outside, and lysine is present in very very small quantity in some of your cereals and grains. So राइस इज वन ऑफ दोज रेयर सीरियल्स एंड ग्रेन्स जहां लाइसिन बहुत अच्छे से एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रेजेंट है. अब ये लाइसिन करता क्या है, क्यों चाहिए हमें लाइसिन? लाइसिन सपोर्ट्स द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH के तरह से रेफर करते हैं, secreted by the pituitary glands and is essential for all important repair and growth function of your body. So HGH secreted peaks at night. रात में बच्चा सबसे ज्यादा बढ़ता है, कहा था ना दादी ने, याद है? So eating rice at night helps in growth and it eases digestion of food. इसलिए रात को राइस खाना बिल्कुल भी गलत नहीं है. आपका HGH पीक पर होता है रात में, और ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है. फिर आप सोचेंगे ग्रोथ मतलब मोटे हो गए, नहीं, दिस इज रिपेयर एज वेल. सो रिपेयर एंड ग्रोथ, ये दोनों ही फंक्शंस जो आपकी बॉडी के हैं उसे लाइसिन काफी मदद करता है जो राइस में एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रेजेंट. HGH are most important in the first 8 years of your life, है ना? हम
पलट भी नहीं पाते थे, फिर धीरे से पलटे, रेंगना शुरू हुआ, फिर हम चलना शुरू किए, बैलेंस आने लगा. सो ये सारे जो माइलस्टोन्स है, दे आर अचीव्ड इन फर्स्ट 8 years ऑफ योर लाइफ. सो उस समय राइस खाना बहुत ज्यादा पौष्टिक है, जरूरी है. Hence, rice is very much essential in this time, being very easy to digest for young ones. Rice promotes growth of probiotic bacteria, eases bowel movements, and rids you of bloating. It prevents premature wrinkles, supports good hair growth. It has this inositol, which has fat burning, anti-anxiety, and irritability reducing property. It allows for better assimilation of vitamin D and calcium. आपने विटामिन डी भी लिया, कैल्शियम भी लिया, लेकिन उसका assimilation की मदद कौन करेगा? राइस करेगा. And it is a very good source of methionine, an amino acid required, which I cannot read below this. Let me just check. To break down fat in your liver. And again, her chart, her masterpiece chart. So, some of our myths and their solutions. We say rice has starch. Yes, of course. But cooked rice has less than 10% starch left, number one. Number two, starch is a source of energy and it's converted to glucose in the body. So we need starch. Rice has a high glycemic index and is bad for diabetics. हम कहते हैं diabetic हो, rice मत खाओ. But rice is traditionally eaten with dal, sabzi, meat, dahi, etc. along with ghee, and this lowers the glycemic index of your meal and is therefore totally safe for diabetics. Bhutan is predominantly rice eating country and has no problem of diabetes. So there is much more to diabetes than simply blaming rice. Rice is a carb, so avoid eating at night. Yes, हम सभी कहते हैं रात में राइस नहीं खाते भाई, बड़े proudly कहते हैं. So no food is just carb or vitamin or protein or fat. Rice has crucial amino acids, vitamins, and many phytonutrients along with carbs. So carbs are essential for our body and have calming effect. Therefore, rice is good as a dinner option. Then, right, eat brown rice. बड़ा trendy है ये जी, हमारे घर तो सिर्फ brown rice खाते हैं. Very nice. Traditionally, we have always eaten hand pounded and single polished rice, which is white in color, not brown. This kind of rice contains just the optimum amount of fiber and not high, and lets the body assimilate all the nutrients from it, for example, vitamin B6 and zinc. And finally, so ये सब कुछ accept किया हमने, फिर भी क्या हुआ? I'm sorry. Anyway, so lastly, what we said, okay, fine. So you say rice is nice, then we must not eat too much of rice. So too much of hawa is also bad, she says. She says that too much you will not take of anything. So your stomach knows the optimum quantity. कह देते हैं ना हम यहाँ तक पेट भर गया है, अभी हमें बिल्कुल नहीं खाना है. So definitely our body tells us and we will never overeat. So finally, I just want to conclude saying that the best thing to reach out till your local food, till your home recipes is have a get together with all your elders present. Elders meaning your granny, your dadi and their sisters and everyone, and actually make a list of recipes and their nuskas that they have, but they never thought that we are interested in them. So they never share. यहाँ पर एक छोटी सी चीज शेयर करके ही I'll be closing. As you know that my father-in-law is here. He reviewed this book. Now he is so well versed with all these nuskas. He will always tell you put ghee here. He will tell you नमक के पानी में पैर डाल दो, इधर लगा दो, उधर कर लो. And we are so much blessed to have these nuskas at home. कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर हमें बाद में याद आता है. We first say आबा को पूछो, आबा को पता होगा.
So in fact, ये strength है हमारे culture की, that our elders are really, really well versed with them. Are we going back to them and asking them is the only point of disconnect. I think it's worth pondering on. So with this thought, I would conclude my review, and now floor is open for your questions, your feedbacks. I know that we have stretched today a little bit more, but I'm not sorry for it because it was worth doing it. And I'm sure all of you sitting here have found it fruitful, so you're here. So we are open to your feedbacks, your questions if they are. Sheetalji, just one quick thing. Yes, please. Hello, sorry, I missed the first one because we were in a different session of fast reading. Okay. Workshop. The 9 items which you said, out of that you explained 2, right? 10. Yeah. Ghee, kokum, banana, rice. Okay. Which are the other ones? Kaju, ambadi, olive, jackfruit, sugar. So are they 10? Ghee, kokum, banana, rice, kaju you said. Yes. Okay. Ambadi, jackfruit, sugar. Yes. Olive. Okay. It's a fantastic book, and she has written it so simply, absolutely simple language, and she would in between bring her Indianness in between. Pucho jakar maa se. I mean, she's fantastic at it, and I loved the way she took me. And it was, I think, a 4 or 5 days read. It was such a quick read. I could read it in 4 days. What, 170 pages? Very simple, easy. Oh, your speed is high, so you could finish it. No. It is about rice. तो दिन भर हम उसके around होते हैं ना, तो relate fast कर पाते. It's not a foreign entity, so you can grasp it really fast. Okay. Thank you. Yeah. More feedbacks, questions if you have. All right. So on that note, we call it a closure for today's session. And I'm very glad that all of you attended. Thank you so much, Baba, for really enlightening us. I think this piece of history would have never reached till us, lots of us, if you would not have taken these efforts. So thank you very much. Thank you. That is all. See you all in the October session next month. Thank you.